Hello student, this is Hari from English classes and today I am going to discuss about position of adverb. It is very interesting topic, right? Actually what happened that when we don't know that where to use and how to use adverb in a sentences. Okay, suppose if we put adverb in a sentence and we don't know where to put. Okay, at that time what happened, our sentences will be just wrong. So for that I have given all the explanations in this video, okay, so that it will be very easy and you will understand all the concept of adverb, that where to use and how to use in our sentences, so that our sentences will be just correct, right? So let's start to discuss one by one whatever the rules will be just there for that position of adverb. So we will just learn in this video. तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि already I have given the explanations of three types of adverb: simple adverb, relative adverb and interrogative adverb. तो इन तीनों adverbs को किस प्लेस पे यूज करेंगे? अगर हम adverb को गलत जगह पे यूज करेंगे तो उनका मीनिंग भी बदल जाएगा. Okay, suppose if you put adverb in another places, so definitely what happen that sentence, the meaning of sentence will be just changed. So we just have to take care during putting an adverb in a sentences. तो इसी के लिए यह वीडियो है. अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा कुछ सीख भी पाएंगे. तो जैसा कि हमने तीन एडवर्ब के बारे में बताया, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इन तीनों एडवर्ब को किस प्लेस पे यूज कर सकते हैं वही जानना है हमें. तो जैसा कि सिंपल एडवर्ब इज यूज्ड in anywhere in a sentence, in the beginning of a sentence, in the mid of the sentence and at the last of a sentence. Okay, relative adverb is used after incident, but we have to take care this, there must be an antecedent in a sentence. If there is no an antecedent in a sentence, then how can we use relative adverb? This is the problem. Okay, so we have to take care also for that things. And the last one, that is the interrogative adverb, right? So interrogative adverb is used in the beginning of a sentence. interrogative sentence को हमेशा, ठीक है, सेंटेंस के सबसे पहले में यूज करेंगे. अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सेंटेंस के बाद में यूज करते हैं यानी कि लास्ट में, तो होता क्या है कि हमारा सेंटेंस ऑफनली ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल एडवर्ब को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. सिंपल एडवर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, रिलेटिव एडवर्ब इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, सिंपल एडवर्ब को आपको बताएंगे सिंपल सेंटेंस और रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्योंकि रिलेटिव में क्या करता है कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज डायरेक्टली आपको मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है, तो उसी को कहते हैं. तो जहां पे दो सेंटेंस होता है, ठीक है, बीच में होता है रिलेटिव एडवर्ब जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है, तो उसको कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं एक एज एग्जांपल के थ्रू से. जस्ट लाइक दिस इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल एडवर्ब is called simple sentence, right? While relative adverb is called complex sentence. Got it? We have to take here also simple sentence, simple adverb is used anywhere in a sentence, like in the beginning of sentence we can write in the beginning, in the mid and at last of sentence, okay. Now we will see, okay, relative adverb को यूज किस जगह पे करेंगे. relative adverb
relative adverb is used after an antecedent in a sentence. Okay. Finally, interrogative sentence. Interrogative adverb is used in the beginning of a sentence. So okay student, we have seen that simple adverb is called simple sentence. Simple adverb को हम क्या कहते हैं? Simple sentence कहते हैं. While relative adverb is called complex sentence. जबकि हम relative adverb को complex sentence कहते हैं. Simple adverb is used anywhere in a sentence, like in the beginning, in the mid, at last of a sentence. Simple adverb को हम sentence के किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, चाहे उसे आप शुरुआत में यूज करें, चाहे आप सेंटेंस के बीचों बीच में प्रयोग करें, अंततः आप सेंटेंस के लास्ट में भी आप उसे यूज कर सकते हैं. लेकिन रिलेटिव एडवर्ब को जब आप यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक एंटीसीडेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसे एंटीसीडेंट के बाद ही यूज करते हैं आपको रिलेटिव एडवर्ब को. उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड ओके in the beginning of a sentence. So we must have to take care that relative adverb is used after an incident, okay, after an antecedent. But we have to also take care one thing, that interrogative adverb is used in the beginning of a sentence. So let's start to see the examples. Just like he ran fast, right? He ran fast. आप यहाँ पे देखते हैं ही रैन फास्ट जो है, वहां पे फास्ट जो है एक एडवर्ब है जो आपको रैन को मॉडिफाई करता है. तो फास्ट क्या एक एडवर्ब है? ये कौन सा एडवर्ब है? ये सिंपल एडवर्ब है. तो सिंपल सेंटेंस को आप यहाँ पे अभी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के पहले, आप बीच में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, राइट. अगर हमने देखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो व्हाट इज योर नेम में आप क्या देखते हो स्टूडेंट्स कि आपका जो वर्ड है वो एक क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है. इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ओके. तो डेफिनेटली इट विल बी इंट्रोगेटिव एडवर्ब. अगर ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब को सेंटेंस के सबसे पहले ही यूज किया जाता है. लेकिन हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब को. अभी जो मैंने बताया कि रिलेटिव एडवर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के बाद ही यूज किया जाता है. जैसे मैंने एक सेंटेंस लेता हूं, आई नो, ओके, आई नो, मुझे पता है या मैं जानता हूं. वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स. तो आप इस सेंटेंस को देखने का प्रयास कीजिए कि आई नो वेयर सी लिव्स. तो यहाँ पे जो वेयर है यह एक रिलेटिव एडवर्ब है जो ये सेंटेंस को और ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है. तो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, और ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है. तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को क्या करता है? मेन क्लॉज में जोड़ता है, कि प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ता है. तो हम इसको बताएंगे रिलेटिव एडवर्ब, ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और यहाँ पे जो है वो एक आपका सिंपल एडवर्ब है. तो सिंपल एडवर्ब को सेंटेंस के किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब को आप एंटीसीडेंट के बाद ही यूज करेंगे. और इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है वो ऑफनली हम सब जानते हैं कि उसे सेंटेंस के सबसे पहले ही पुट किया जाता है. अगर आप उसे पहले पुट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? वो गलत हो जाएगा, ठीक है. नाउ हम कंपेयर करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को लेकर कंपेयर करेंगे कि हम कैसे उसे बता पाएंगे कि किस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलेंगे, किस वर्ड को एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है. इन सारे बातों को लेकर के बहुत सारे confusions है. There are so many confusion regarding this, that how to identify adverb and adjective. Okay, so let's start to identify that which words will be just there for adjective and for adverb. Okay, so we can see through the examples. हम एग्जाम्पल के जरिए से देख सकते हैं कि हम किसे एडजेक्टिव बताएंगे और किसे एडवर्ब बताएंगे, ठीक है. तो देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं एडवर्ब का, और इस जगह पे हम बात करते हैं एडजेक्टिव का, ठीक है. जो कि एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण है. ये वर्ब को एडजेक्टिव को खुद को विशेषता बतलाता है, खुद को मॉडिफाई करता है. लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है? ये नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को ही केवल क्वालिफाई करता है, ठीक है. तो हम कुछ सेंटेंस लेते हैं.
जैसे हमने यह सेंटेंस लिया था स्टार्टिंग में, ही रेन फास्ट, मैं इसी सेंटेंस को लेता हूं, ही रेन फास्ट। तो हमने यह सेंटेंस के लिया, तो फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है जो रेन को मॉडिफाई किया। रेन क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता हो तो एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लेता हूं, ही इज द फास्ट रनर, ही इज द फास्ट रनर। अगर आप इस सेंटेंस में देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे जो फास्ट है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इसलिए वो क्योंकि देखिए इसके बाद एक रनर है, ठीक है। रनर का मतलब क्या होता है, दौड़ने वाला। आप इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, मैं यहाँ पे बताता हूं। RUN, रन का मतलब होता है दौड़ने वाला, और ER का मतलब होता है ने वाला। तो रन प्लस ER इक्वल टू रनर, ठीक है। अब ये रनर का मतलब क्या हुआ, रनर का मतलब दौड़ने वाला। अब दौड़ने वाला का मतलब कोई नाउन है, नाउन का मतलब कोई व्यक्ति है। और अगर किसी व्यक्ति को मॉडिफाई कर रहा है मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की क्वालिफाई कर, अगर नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है तो डेफिनेटली वह एडजेक्टिव होगा। तो आप इन दोनों सेंटेंस को देख करके आप पहचान लिए होंगे कि हम किसे एडवर्ब बोलेंगे और किसे एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूजेस in a sentence, okay, according to uses of the words in a sentence, then we may identify that which word will be just called for adverb and which word will be just for the adjective. Got it? Now we see, she has only two books. Okay, she has only two books. अब यहाँ पे देखिए only जो है, only का मतलब मात्र एक, she has only two books। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि only जो है वो एक एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू बुक्स है। अब टू क्या है, क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब क्वांटिटी आने की एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करता है। अगर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्या है, वो एक एडवर्ब है, ठीक है। हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी इज द ओनली, सी इज द ओनली daughter of her parents, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओनली है, ओनली का मतलब वह अपने माता पिता का इकलौती बेटी है। तो आप देखिए कि ओनली के बाद यहाँ पे डाउटर लगा है। डाउटर क्या एक प्रकार का नाउन है, अगर वह नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा, और नाउन को मॉडिफाई करा तो वो क्या है, एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव है। नाउ वी कैन सी अनदर सेंटेंस जस्ट लाइक, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ कम बैक, ठीक है। तो आप देखिए कम बैक, ठीक है, कम बैक, तो कम क्या है, एक आपका वर्ब है, और बैक आपका क्या है, ये एक क्या है, ये एडवर्ब है। तो जब वर्ब के बाद लगा यानी कि वर्ब को मॉडिफाई किया, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, जब वर्ब को मॉडिफाई किया तो एक एडवर्ब होगा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करके लिखते हैं जस्ट लाइक ही हैज एंटर्ड, ओके, रूम बैक फ्रॉम बैक डोर, गॉट इट। अब हम यहां पे देखने का काम करते हैं, ही हैज एंटर्ड, ओके, हमने यहां पे छोड़ दिया इनटू द रूम, ही हैज एंटर्ड इनटू द रूम फ्रॉम बैक डोर। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो बैक यहाँ पे भी है और बैक इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये आपको नाउन को क्वालिफाई करा तो वो एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। जैसे हम कुछ और सेंटेंसेस बताते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को देख करके आप पकड़ लेंगे कि अगर हम एडवर्ब को गलत जगह पे यूज करते हैं तो उनका मीनिंग में कितना इफेक्टिव होता है, कितना उसका मीनिंग में प्रभाव पड़ता है, कैसे उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। मैं एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखने का प्रयास करता हूं, आप उन सेंटेंसेस को देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाउ इज इज गोइंग टू चेंज इफ आई पुट एन एडवर्ब इन अ इनकरेक्ट प्लेसेस इन अ सेंटेंसेस। ओके, जस्ट सी, मैं बात करता हूं एक सेंटेंस का, only she can speak, only she can speak, एक सेंटेंस है only she can speak, और एक सेंटेंस है she can speak only, ठीक है। एक सेंटेंस है she can only speak। अब आप देखिए इन तीनों सेंटेंसेस को आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए,
ओनली, ओनली, ओनली। हमने ओनली को 3 सेंटेंसेस में, 3 सेंटेंसेस में हमें अलग अलग जगह पे यूज किया। अब इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग निकाल के देखिए कि तीनों में आपको कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। यू विल गेट सम डिफरेंसेस among these sentences. Okay, only she can speak only and she can only speak। तो आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप इनमें कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप इन्हें सीखने का प्रयास करें, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि एडवर्ब ऑफ पोजीशन को, एडवर्ब ऑफ मैनर को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम सेंटेंस के किस किस भाग में यूज करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप क्या कीजिए, इसे आप लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो मुझे आशा है कि यह आपको अवश्य अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर देखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम देखेंगे और सारे एडवर्ब का कुछ पार्ट्स देखेंगे जो हम देखेंगे किस सेंटेंस में किस जगह पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। So guys, as I told you, that means we just have to see also the position of adverb. Okay, so here I'm just going to discuss about adverb of manner, adverb of time and place, adverb of frequency. That these are the adverb where should be used in a sentence, and definitely we must keep a knowledge. Okay, that how to use and where to use in a sentence. So this will just definitely will just give you the knowledge that how to use and where to use in our sentences. So as I've given here, just see adverb of manner, it is used after a verb in a sentence, but if there is an object, it may be used after that and after object. अगर किसी भी सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो अगर उसमें वर्ब होगा तो जस्ट वर्ब के बाद आप एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आया हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है हम उस ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे, राइट। सी एग्जांपल्स, he talks well, he talks well, where is an adverb, okay, and it modifies the verb, so that is why it is an adverb. But in the other sentence we have just given here, he well talks, he well talks, just see ये टॉक्स की जस्ट पहले लगा दिया। अगर टॉक्स के पहले लगाएंगे तो सेंटेंस तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि वर्ब के जस्ट बाद लगाना है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, मैंने बताया यह भी कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद आप लगा सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस आपका सही होगा। लेकिन अगर आप जस्ट आप सब्जेक्ट के बाद लगाते हो या फिर किसी भी प्रकार के वर्ब के पहले लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होने वाला है। ही फ्लुएंटली स्पीक्स इंग्लिश, तो as I told you, it has been modified just like that. Okay, that is why it is a wrong sentence. But we have to see the next sentences, just like it is raining regularly. Okay, regularly once again I have used after verb, right? After verb it is used, definitely it will be right. But we have to see the another sentences just like it is regularly raining. It is regularly raining. Okay, so it is incorrect sentences because the use of adverb in this sentence that is wrong. Okay, now we have to see students adverb of time and place. तो टाइम और प्लेस, ये दोनों का जो एक्टिविटीज है, दोनों का जो फंक्शंस है वो एक ही जैसा है, तो इसी को मैंने एक ही साथ लेके चला है। तो सी, इट इज यूज आफ्टर अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज यूज आफ्टर अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इट मे बी यूज आफ्टर दैट। Okay, just like now, then, soon, today, next day, etc. So these are the words which I have just given here. Okay, so these are the words of adverb of time and places, and it is used. Okay, it is used, or these are the used a after a verb if there is object, if there is object. Okay, then we have to use the adverbs after object. Okay, so these are the things we must take it in our mind, right? So see, this is correct use and this is incorrect use. Once again I'm just going to compare between two sentences, okay, which is wrong and which is right. Okay, see students, she will come soon, तो she will come soon, देखिए जो soon है वो एक एडवर्ब है, राइट, और कम के बाद आया, तो कम के बाद आया तो कम क्या एक वर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वर्ब को जब मॉडिफाई किया तो एक एडवर्ब होगा, तो हमारा ये सेंटेंस सही है। लेकिन हम इसी सेंटेंस को देखते हैं, सी सून विल कम। अभी मैंने क्या बताया कि अगर आप
हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब की जस्ट पहले यूज करते हो, या अगर आप सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं तो भी आपका सेंटेंस गलत होने वाला है। ही विल गो टू जयपुर नेक्स्ट डे। ओके, या एब्सोल्युटली इट इज राइट। ओके, ही विल गो टू जयपुर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, राइट। बट सी, ही विल नेक्स्ट डे गो टू जयपुर, हम किस तरीके से बोलें? Okay, suppose if I speak like this, definitely the sentence, okay, the sentence is wrong. He has not arrived yet. He has not arrived yet, right? वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है। तो देखो एट क्या है, एट का मतलब अभी तक नहीं आया है, ठीक है, जो अराइव के बाद जस्ट लगा है। लेकिन he has not arrived, okay, तो this is absolutely wrong. Now we may see they live here, वे लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखने का प्रयास कीजिए, they here live, ठीक है, तो ये सेंटेंस तो डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक है, ये सर्टेनली रॉन्ग है। तो अभी हमने क्या देखा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में हमने देखेंगे कि हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस के किस पार्ट में यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, उसमें भी कुछ कंडीशंस, टर्म्स होगी जो हम देखेंगे और उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं, राइट। So guys, as we have discussed about adverb of time, adverb of place, adverb of manner, okay, now it is turn to study about adverb of frequency, that where to use and how to use in a sentence. So let's start to discuss about adverb of frequency. Actually, we will see the position of adverb frequency, the definition. Okay, it is used often between subject and verb. जो इसका प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही किया जाएगा, ठीक है। It is used often between subject and verb, just like always, often, daily, generally, rarely, nearly, almost, just, hardly, already, etc. So there are some adverb of frequency which are being used between subject and verb. So we have to take care when we are just going to use about adverb of frequency. At that condition we just have to apply this adverb oftenly between subject and verb. At that time what happened, that sentence is right and sentence should be right. Okay, if we just put adverb frequency here and there, what happened, that the meaning of sentence is just not going to be correct. Okay, so see through the examples. His mother never cooks food. I'm just talking about his mother. तो his mother क्या है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, cooks क्या है, एक वर्ब है। तो दोनों के बीच में जो नेवर का जो इस्तेमाल हुआ है उसी को हम बताएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैं पहले बताया कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है, यानी कि मैं बता रहा हूं प्रिंसिपल वर्ब मैन वर्ब के बीच में ही होता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलवेज लगाया है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाया है, वह हमेशा सत्य बोलता है। ही ऑफन कम्स लेट, वह ज्यादातर, वह सामान्यतः देर से ही आता है, ठीक है, तो ही कम्स, तो ही कम्स के बीच में जो ऑफन लगाया गया, ही ऑफन कम्स, तो ऑफन क्या है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो सब्जेक्ट और वर्ब के ही बीच अप्लाई किया गया है। वी हैव जस्ट अराइव, तो हम देखें कि वी हैव जस्ट अराइव, ठीक है, तो यहाँ पे जो जस्ट को लगाया है, वी जस्ट हैव अराइव नहीं, वी हैव जस्ट अराइव, ये भी सही है। तो इसके जस्ट ठीक विपरीत में हम जो सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये हमारा गलत सेंटेंस, जिसको कहते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस। दीज आर करेक्टेड सेंटेंसेस and these are incorrect sentence. So see, his mother cooks food never. Okay, so I have applied never at the last of a sentence which doesn't follow this rule. Okay, so that is why it is wrong. He speaks the truth always. It happens same thing. Okay, it happens same thing again as it happened in the first sentence. He speaks the truth always. That is why it is always wrong. He comes often late. He comes often late. This is also wrong because just see, often is being used here between comes and late. Comes and late, right? इसके बाद यानी कि comes के बाद लगा दिया गया है, इसीलिए गलत है। I just have arrived. I just have arrived. ऐसा नहीं। Okay. Then see, we will see some more rules. Okay, regarding adverb of frequency. So let's start to study the next rule. If there are some auxiliary verb just like is, am, are, was, were, okay, adverb is used after supporting verb. Then adverb is used after supporting verb. अगर किसी भी प्रकार के सेंटेंस में
ठीक है। सपोर्टिंग वर्ब जस्ट लाइक इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो। तो इस प्रकार का अगर आपका सपोर्टिंग वर्ब हो तो जो आपका एडवर्ब होगा यानी कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होगा वो ठीक हम उसके बाद यूज करेंगे। जस्ट लाइक ही इज ऑलवेज रेडी, ठीक है, ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार है, वो हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। तो इज के बाद आप ऑलवेज को यूज किए, जो एक आपका ये सपोर्टिंग वर्ब है। सी इज ऑफन लेट, वह सामान्यतः देर ही रहती है, तो सी इज ऑफन लेट ठीक उसी प्रकार से लगाया गया, इज के बाद लगाया गया है। दे आर जनरली लेट, वे सामान्यतः देरी होते हैं, वे सामान्यतः देर से ही रहते हैं, तो दे आर जनरली लेट, यहां भी उसी तरह है। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। इफ हैव टू, यूज्ड टू, हैज बीन यूज्ड इन अ सेंटेंस, एडवर्ब इज यूज्ड बिफोर दैट। अगर किसी भी सेंटेंस में हैव टू और यूज्ड टू का प्रयोग किया गया हो तो जो आपका एडवर्ब होगा उस एडवर्ब को हम ठीक उसके पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक उसके पहले यूज करेंगे, हैव टू के पहले और यूज टू के पहले। अगर हम हैव टू और यूज टू के बाद एडवर्ब को यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, आई ऑफन हैव टू गो ऑन फुट, मैं ज्यादातर क्या करता हूं, पैदल ही चलता हूं, मैं ज्यादातर पैदल ही चलता हूं। He always used to take umbrella, देखिए he always used to take umbrella, जो आप used to देख रहे हो, ठीक है, जो मॉडल्स एक्चुअली वर्ब को देख रहे हैं, ठीक उसके जस्ट पहले हमने यूज का ऑलवेज का प्रयोग किया गया है जो एक एडवर्ब है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हैव टू, यूज टू का प्रयोग किया गया हो तो ठीक उसके पहले हम एडवर्ब का यूज करेंगे। देन वी विल सी द लास्ट रूल ऑफ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। व्हाट इट? Adverb not is used always. Adverb not is used always after auxiliary verb and before principal verb. यानी कि जो यहाँ पे not जो बताया गया है adverb not, यानी कि ये एक not है, not मतलब एक adverb है जिसका प्रयोग जो होता है वह ठीक auxiliary verb के बाद और principal verb के पहले ही होता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के पहले। जैसे सेंटेंस में देखिए आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैं अपना काम नहीं किया हूं, तो मैं अपना काम नहीं किया हूं तो आई देखिए एक सब्जेक्ट है और हैव क्या है, हैव ही है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं हम सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और डन क्या है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। तो ये दोनों के बीच में जो सेंटेंस में जो लगा है, दोनों के बीच में जो वर्ड यूज हुआ है उसी को कहेंगे नॉट, यानी कि एडवर्ब नॉट। He did not go to जयपुर, वह जयपुर नहीं गया है, तो देखिए यहाँ पे did है और यहाँ पे go है, यानी कि go आपका मेन वर्ब है, did आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो दोनों के बीच में जो not का यूज हुआ है उसी को हम बोल रहे हैं। She went, she will write an application, she will write an application, देखिए will और यहाँ पे write दोनों के बीच में जो वर्ड यूज हुआ उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो we have seen here adverb of frequency and some other rules of adverb of frequency. Okay, in the next part of the adverb video we will see the uses of